Hello students, good morning everyone. Myself Monica Jain from Government Senior Secondary School Gale, Ambala City. I welcome you all in this lecture, Chapter 15 Communication Systems, Part 2. इस चैप्टर का एक पार्ट आप लोग देख चुके हैं। आज हमने उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है और अपनी लर्निंग को फॉरवर्ड करना है। लास्ट चैप्टर में आपने समझा था कि कम्युनिकेशन क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एंड वी वर ऑन स्पेस कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग फ्री स्पेस। एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम कर चुके हैं, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। आज हमने फॉरवर्ड करना है स्काई वेव प्रोपिगेशन। Then we will move on to space wave propagation, height of TV antenna, that is TV transmission समझेंगे और height of TV antenna भी कैलकुलेट करेंगे कि एक डेफिनेट हाइट के टीवी एंटीना की रेंज जो है वो क्या होती है। Then we will switch over to satellite communication, then modulation, its types, and some related numericals and questions. This will be all the roadmap of this lecture. So let's switch over to the next slide. Let's start now the second mode of wave propagation, that is sky wave propagation. Last time, that is in lecture 1, we have completed ground wave propagation. Now we are to go for sky wave propagation. Sky wave propagation का ही second name है ionospheric wave propagation. Why it is called so? Let's try to understand it. Sky waves are the AM radio waves. AM का मतलब है amplitude modulated radio waves which are received after being reflected from ionosphere. Ionosphere, students, it is a layer of atmosphere which I am going to explain shortly. The propagation of radio wave signals from one point to another via reflection from ionosphere is known as sky wave propagation. जो ionosphere है वो क्या है? It is represented in this diagram. देखिए, आपको पता है कि जो अर्थ के अराउंड हमारे पास एक गैसेस का एनवेलप है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. Atmosphere is extending up to infinity, but its layers are represented in this figure. That is, the first layer is known as troposphere. The second layer, that is stratosphere, it extends up to from 18 to 50 kilometer. Then above stratosphere, it is mesosphere. और mesosphere से ऊपर, that is roughly 350 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक जो एक्सटेंड होता है वो है आइनोस्फीयर. ठीक है, तो एक बार अब इसको थ्योरी को पढ़ते हैं और आगे समझते हैं. अब तक हमने इतना समझ लिया कि जो आइनोस्फीयर है वो लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की जो हम कंसिडर कर रहे हैं. The skywave propagation is a consequence of total internal reflection of the radio waves. अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिससे हमें ये पॉइंट क्लियर होगा. Higher we go in the ionosphere, free electron density increases and refractive index decreases. एटमॉस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट डिक्रीजेस, राइट. सो अब हम समझते हैं कि आइनोस्फीयर्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है यहाँ पे, जो लेयर्स बनी हुई हैं उनका क्या रोल है वेव्स को प्रोपेगेट करने में. The ultraviolet and high energy radiations from sun are absorbed by air molecules and they get ionized to form the ionized layer or electrons or and ions. मतलब जो गैसेस हैं, गैसेस जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, they get ionized by the ultraviolet radiations which are coming from the sun. Ionosphere extends from 80 kilometer to 300 kilometer in the atmosphere above the earth's surface that we have already discussed. अब यहाँ पे मैं कुछ add on करूँगी that ionosphere is further divided into several layers. These layers are named as D layer,
E layer, F1 layer and F2 layer, and each layer reflect some different type of radio waves. That is, some of them, one of them can reflect high frequency radio waves, another can reflect some other frequency of radio waves, and so on. Okay, so now we've switched on to the next slide. Now we are starting with the important terms which are used in skywave propagation. So let's start with first, that is the critical frequency. Critical frequency is the highest frequency above which the waves penetrate the ionosphere and below which the waves are reflected back from the ionosphere. कहने का क्या मतलब है कि इससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती और वो आइनोस्फीयर से आगे फर्दर रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब दे पास थ्रू द आइनोस्फीयर. It's denoted by F or Fc. Its value is not fixed and it depends on the electron density of the ionosphere. Now Fc is equal to 9 times n maximum raised to power 1 by 2. अब n maximum क्या है? Free electron density of the layer from which waves are being reflected. Okay, so Fc को, critical frequency को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो लेयर्स की मैं पहले आपसे बात कर रही थी, जैसे डी लेयर, ई लेयर, F1, F2, उन सब की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट टेक्निक से मेजर की जा सकती है एंड वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि Fc की वैल्यू क्या आएगी. द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेंज इज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 5 to 10 मेगाहर्ट्ज. सो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्टिकुलर लेयर के लिए हमें एन मैक्सिमम पता है उसके लिए हम Fc कैलकुलेट कर लेंगे और वो लेयर उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो वेव्स है उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी और उनको पास थ्रू करने देगी. ठीक है. द फ्रीक्वेंसीज हायर देन दिस क्रॉस द आइनोस्फीयर एंड डोंट रिटर्न बैक टू द अर्थ. एक बार डायग्राम देखिए, आपको वैसे पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. दिस इज द ट्रांसमिटिंग एंटीना. यहाँ से वेव्स जा रही हैं और आइनोस्फीयर की लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होके वो रिसीवर तक आ रही है. ठीक है. तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, ये जो लेयर है, लेयर के लिए हम Fc कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर वेव्स की फ्रीक्वेंसी Fc से ज़्यादा होगी तो वो पास थ्रू करेगी, मतलब आगे निकल जाएंगी और वापस नहीं आएंगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. नाउ वी कम फॉरवर्ड विद द रेंज ऑफ स्काईवेव प्रोपिगेशन. The skywave propagation is limited to the range of 2 megahertz to 30 megahertz. This region is called short wave band. Okay, so this is here the next important term used in skywave propagation is skip distance. Let's start understanding that. The skip distance is the distance over the earth's surface between the point where a radio signal is transmitted and the point where it is received, having traveled to the ionosphere and been reflected back by the ionosphere. मतलब skip distance कौन सा distance है जहां से वेव ट्रांसमिट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे रिसीव हुई, ये बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड स्किप डिस्टेंस और द स्किप जोन. ठीक है. अब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, ये यहाँ से ये ट्रांसमिट हुई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आ गई. तो इस वेव के लिए, ये जो वेव सेकंड वेव है, इसके लिए स्किप डिस्टेंस हो गया ये पूरा. राइट. सो स्किप डिस्टेंस क्या है कि जहां तक वेव ने स्किप किया, मतलब ट्रांसमिट होने और रिसीव होने के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द स्किप डिस्टेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्काई वेव प्रोपिगेशन and the important terms used in skywave propagation. Okay, so now we come forward to the next mode of propagation, that is the space wave propagation or tropospheric wave propagation. Tropospheric wave propagation का मीनिंग है कि ये जो स्पेस वेव प्रोपिगेशन है ये ट्रोपोस्फियर के थ्रू प्रोपिगेट हो रही है. And this mode of propagation is also for AM radio waves, matlab amplitude modulated radio waves. Okay, so let's start with this. Space waves travel in straight lines, but they depend on line of sight conditions, so they are limited in their propagation by the curvature of Earth.
अब एक बार इसको पहले इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं और उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एंटीना हियर एंड रिसीविंग एंटीना हियर। जो वेव स्ट्रेट ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीवर एंटीना पे जाएंगी, दे मे बी कॉल्ड एज डायरेक्ट वेव्स एंड दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्पेस वेव्स। और कुछ वेव्स ऐसी भी हैं जो अर्थ से बाउंस होके रिसीवर तक पहुंचेगी, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेस वेव्स। ओके, सो ये जो मोड ऑफ प्रोपिगेशन है, दिस इज टिपिकली फॉर फ्रीक्वेंसीज विच इज ग्रेटर, it is typically for the waves whose frequency is greater than 30 megahertz. क्यों? रीजन क्या है कि 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, हम उनको ग्राउंड वेव्स के थ्रू भी नहीं प्रोपेगेट कर सकते और स्काई वेव्स के थ्रू भी नहीं। ग्राउंड वेव के थ्रू करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ग्राउंड उनकी जो एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब कर लेगी, और स्काई वेव के थ्रू करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी, बट दे विल पास थ्रू द आयनोस्फीयर एंड रिफ्रेक्ट। Okay, so let's now detail this space wave propagation. So far बच्चे आप लोगों ने इतना समझ लिया है कि जो space waves हैं, they are traveling in straight lines as is clearly shown in the diagram. They propagate very much like electromagnetic waves in free space. This mode is forced on the waves having frequency greater than 30 megahertz because their wavelengths are too short for reflection from the ionosphere, and the ground wave of such a high frequency disappears very close to the transmitter owing to tilt. ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन में जो वेव्स है वो टिल्ट होती हैं और फाइनली दे लाई डाउन ऑन द अर्थ। दैट मीन्स over the curvature of earth, ground waves cannot cover a very large distance. अब इस स्लाइड में एक और वर्ड आया है जिसको हमने समझना है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दे शुड फेस ईच अदर, मतलब दे शुड सी ईच अदर, ओनली देन द प्रोपिगेशन विल बी लाइन ऑफ साइट प्रोपिगेशन। मतलब एक दूसरे की नजर में है दोनों, ये जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना है ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, मतलब दिस काइंड ऑफ प्रोपिगेशन विल बी ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपिगेशन। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम स्विच करते हैं और देखते हैं कि जो एंटीना है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि वो वेव्स को मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वो कितने डिस्टेंस तक वेव को प्रोपिगेट करेगा, और इसी तरह से रिसीविंग एंटीना कितने डिस्टेंस से वेव्स को इंटरसेप्ट करेगा। सो नाउ चिल्ड्रन, वी आर स्टार्टिंग विद हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना। ओके, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग this picture first. This is curvature of earth. This is antenna of height h1. अर्थ का रेडियस जो है मैं r ले रही हूँ, और ये जो एंटीना है आई मीन FT एंटीना, यहाँ से वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं। द टीवी सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स traveling in a straight line directly reach the receiver end and are then picked up by the receiving antenna. मतलब वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट होंगी और रिसीविंग एंटीना उसको पिकअप करेगा। ड्यू टू फाइनाइट कर्वेचर ऑफ अर्थ, द वेव्स कैनॉट बी सीन बियॉन्ड द टेंजेंट पॉइंट्स P एंड Q। यहाँ से देखिए P एंड Q आर द टेंजेंट पॉइंट्स। वेव स्ट्रेट लाइन में चलेंगी तो P से पीछे ये रिसीव नहीं हो पाएंगी, ना ही Q से पीछे ये रिसीव हो पाएंगी। दैट मीन्स जो रेंज ऑफ रिसेप्शन है वो होगा PF या FQ, मतलब ओवरऑल रेंज ऑफ रिसेप्शन विल बी PQ. The effective range of reception of the broadcast is essentially the region between P to Q which is covered by the line of sight. मतलब जो रिसीविंग एंटीना है वो यहाँ पे होना चाहिए या मैक्सिमम वो यहाँ पे हो सकता है। अगर इसके आगे होगा रिसीविंग एंटीना तो वेव्स उस तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि हाइट पे ये जो रेंज है वो कैसे डिपेंड करता है। Okay, so let h be the height of transmitting antenna,
D be the distance of coverage from the foot of the tower. Very clear. ये टॉवर का फुट है और यहाँ से P पॉइंट है वो D डिस्टेंस पे। एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से देखें, ज्योमेट्री लगाएं थोड़ी सी। ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं और यहाँ पे ये मिला दिया तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये बन गया ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब जो ओ टी है वो है आर प्लस एच। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू इज आर एंड क्यू टी इज क्यू टी इज रफली द डी। Now, QT, as I already told, QT is roughly equal to D, QTB or FQB. QT is this and FQ is also this. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें एंड वी आर गोइंग टू गेट, सॉल्व करके आप नोटबुक्स पे देखो अपनी, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस 2HR। यहाँ पे आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर जो है दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आ गया डी एच स्क्वेयर प्लस 2HR। अब यहाँ पे हमने h को निग्लेक्ट कर दिया, उसका क्या रीजन है? रीजन इज दैट h टू r के कंपैरिजन में h इज वेरी स्मॉल, सो वी हैव निग्लेक्टेड इट। ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया d इज इक्वल टू 2HR, सो स्क्वायर रूट। इसका मतलब हाइट की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा, कवरेज रेंज आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। हाइट ऑफ टीवी एंटीना इज 100 मीटर। If average population density is 1000 per kilometer square, how many people can observe the program of this station? Radius of earth is given to be 6.4 into 10 to power 6 meter. हमें टीवी टावर की हाइट दी हुई है ना। टीवी टावर की हाइट से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका जो कवरेज रेंज है, मतलब डी क्या है। डी का मतलब कि कितने डिस्टेंस तक हम इसकी वेव्स को सुन पाएंगे। ठीक, सुन पाएंगे मतलब रिसीव कर पाएंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है पॉपुलेशन लिविंग पर किलोमीटर स्क्वायर ऑफ दैट एरिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें दी हुई थी 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें मैंने किलोमीटर की वैल्यू डाल के इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। आपके पास और भी ऑप्शन था कि आप जो dt है उसको भी किलोमीटर में निकाल ले सकते थे, बट यहाँ पे हमने ये मेथड फॉलो किया। द एरिया ऑफ ट्रांसमिशन रीजन ऑफ टीवी वेव्स। देखिए, जब हम एक एरिया लेते हैं तो वो पूरा वेव्स जो है वो पूरे सर्कल में फैलेंगी। इसको इमेजिन करके देखो कि एक जो टावर है, उस टावर से जब हर डायरेक्शन में वेव्स आएंगी, दे विल बी रिसीव्ड विद इन अ सर्कल विच इज रेडियस d। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई डी स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए d की। t का मतलब है ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो वैल्यू डाल दी हमने 2h इंटू आर और कैलकुलेट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एरिया आ गया 40.192 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? 10⁻³ मल्टीप्लाई करिए साथ में, 10⁻³ इंटू दिस वैल्यू, एरिया की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। तो ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया 40.192 इंटू 10⁵ पीपल के 40.192 लाख पीपल विल बी गोइंग टू रिसीव द दिस चैनल्स ऑफ दिस टीवी। ठीक है। इतना जो है वो कवरेज रेंज ऑब्जर्व, इतना कवरेज रेंज जो है ये होगा, मतलब इतने लोग जो हैं वो इस टीवी के प्रोग्राम्स को देख पाएंगे। ओके, सो एक बार आप इसे रिवाइज करें और यूनिट्स की कन्वर्शन न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है बच्चे, सो वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। इसको कैलकुलेट करें, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। सो हियर now, after having an idea of range of transmitting towers, we are now starting with propagation of TV signals.
TV signals are frequency modulated. Now you may ask कि जो frequency modulated है ये क्या है? जो मॉड्यूलेशन है वो अभी हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वहीं पे आपको समझाया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स कौन सी होती हैं। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं यानी कि टीवी सिग्नल्स हैं, दे इम्प्लॉय फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 80 मेगाहर्ट्ज। अब देखो जो 80 मेगाहर्ट्ज है, ये वेव्स हमने इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को हमने ट्रांसमिट करना है। हमारे पास दो रास्ते और भी हैं, ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन एज वेल एज स्काई वेव प्रोपिगेशन। वाई टीवी सिग्नल्स कैन नॉट बी प्रोपिगेटेड बाय दीज मीन्स? पहले समझते हैं कि वाई नॉट बाय ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन में हमने पढ़ा था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो बहुत जल्दी उनको ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेती है और उनकी एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो जाती है। और स्काई वेव प्रोपिगेशन से क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आयोनोस्फीयर जो है दैट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द फ्रीक्वेंसीज विच आर ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज। ये सारा हमने अभी डिस्क्राइब किया है, ठीक है? तो टीवी सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए कौन सा वे रहा? दैट इज स्पेस वेव कम्युनिकेशन या ट्रोपोस्फेरिक प्रोपिगेशन। तो इसका हमने डिस्क्राइब कैसे किया था? ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक वेव्स जो है वो डायरेक्ट इंटरसेप्ट होती हैं। इस तरह की वेव्स जो हैं वो ट्रोपोस्फियर के थ्रू ट्रेवल करती हैं एंड दे आर कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपिगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपिगेशन, or they may get bounced by the surface of earth and so they can reach the receiving antenna. So this is how TV signals are communicated. Now how to calculate maximum distance between two antennas up to which they can operate. Let HT be the height of transmitting antenna and HR be the height of receiving antenna. जो ट्रांसमिटिंग एंटीना की रेंज है वो है dt और जो रिसीविंग एंटीना की रेंज है उसको हमने dr ले लेंगे, ठीक है? और टोटल डिस्टेंस बन गया dm, दैट इज मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, दैट इज dt प्लस dr। जो dm है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस रेंज ऑफ रिसीविंग एंटीना। This we have earlier derived that range of range of an antenna which is having height h, this is equal to 2hr under root। तो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस यहाँ पे हो गया रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस रेंज ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो फॉर्मूलाज को सब्सटीट्यूट करके हमारे पास ये डीएम का फॉर्मूला बन गया, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट का ये जो कम्युनिकेशन का मेथड है इसको कौन कौन यूज करता है? टीवी ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव लिंक्स या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। There are some examples of communication systems that use space wave mode of propagation. So this is how children we use space wave mode of propagation, and based on this we'll have one numerical. Let's have it. A transmitting antenna at the top of a tower has a height 50 meter and height of receiving antenna is 32 meter. What is maximum distance between them for satisfactory communication in LOS mode? LOS मतलब line of sight. Radius of Earth आपको already given है 6800 किलोमीटर। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमें ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट दी हुई है 50 मीटर और रिसीविंग एंटीना की हाइट दी हुई है 32 मीटर। यहाँ से आप कैलकुलेट करें रेंज ऑफ ट्रांसमीटर प्लस रेंज ऑफ रिसीवर। तो एप्रोप्रिएट वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करें एंड यू आर गोइंग टू गेट 45.5 किलोमीटर। देखिए हमेशा न्यूमेरिकल्स करने का एक गोल्डन रूल है, जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया है कि यूनिट्स का हम बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि रिसीविंग एंटीना की हाइट जो है वो मीटर में है, तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी मीटर में होना चाहिए। तो 400 किलोमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद जो है वो उसको
कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो आप सोचोगे कि ये आपने बाद में भी तो 45.5 किलोमीटर निकाला है, बट नो, अगर आप पहले नहीं डालोगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत हो जाएंगे। Okay, so this is how students we are going to get maximum line of sight distance between transmitting antenna and the receiving antenna which are given to us. Now, after a long discussion about the propagation of waves, we are now going to start with the much discussed word, that is the modulation. Now, what modulation is, how many types it is, and how it is done, ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब हमने इस एपिसोड में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मॉड्यूलेशन है वो है क्या। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ अ कैरियर वेव in accordance with the intensity of the signal is known as modulation. मतलब मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, या तो हम कैरियर वेव मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जिसके ऊपर हमने सिग्नल को राइड करना है, या तो हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे या फेज चेंज करेंगे। और कैसे करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल, दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन जो है दैट इज मॉडिफाइंग द वेव। अब इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपने जो है वो कहीं जाना है, ठीक है। अब जब हमने जाना है तो हमारे पास जाने के दो वेज हैं, या तो हम ऑन फुट जाएं या फिर हम जाएं ऑन सम व्हीकल। ठीक है, तो अगर हम बाय फुट जाएंगे तो वी विल बी मच टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड विदाउट रीचिंग द आई मीन व्हेन विल बी रीचिंग द डेस्टिनेशन, और हमारी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी होगी। पर अगर हम किसी व्हीकल के पे जाएं तो उस केस में जो हमारी एनर्जी है वो वी डिप्लीट नहीं होगी एंड वी विल बी एबल टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम। ओके, कुछ इसी तरह से हम मॉड्यूलेशन को समझते हैं। जो इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल है वो एज सच ट्रेवल नहीं कर सकता स्पेस में, तो जब हमने उसको रिसीवर तक भेजना है तो हमें कोई ऐसी फॉर्म भेजनी पड़ेगी जो स्पेस में ट्रेवल कर सके, क्योंकि स्पेस में ना तो साउंड वेव ट्रेवल करेगी ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेंगे। स्पेस में जो ट्रेवल करेगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी तरह हमने कैरियर वेव को चूज किया, अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। एज यू नो दैट रेडियो वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो कैरियर वेव क्या है, इट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। रेडियो वेव travels with the speed of light. Always remember that it is an electromagnetic wave. उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल को राइड करना है, मतलब सुपर इम्पोज करना है। तो सुपर इम्पोज करने पे हम दो तरह से थ्री टाइप्स इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या तो हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज करें, या हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, या फिर हम इसकी फेज चेंज करें। ठीक है, जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ये आपने दोनों पार्ट समझने हैं। So let's come forward with the first diagram. This is carrier wave. Already described. Modulating wave मतलब information carrying signal. It is also already described. Amplitude modulated wave. देखिए जहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो कैरियर वेव का भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमाइज हो गया। मतलब ये दोनों वेव्स ने आपस में सुपर इम्पोज करके कुछ इस तरह का सिग्नल बनाया। कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कहीं पे एम्पलीट्यूड कम है। मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स पे तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स प्लस हो गए और किन्हीं पॉइंट्स पे इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स माइनस हो गए। इस तरह जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं।
जहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल सुपर इम्पोज करेगा कैरियर वेव पे, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जहाँ पे ट्रफ मतलब फॉल करेगा सिग्नल का कैरियर वेव के, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट। सो इन दिस वे वेव्स आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगी। So this is how children we understand amplitude modulation and frequency modulation. So we come forward that what is the need of modulation. मॉड्यूलेशन के मेजरली जो है वो 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट्स द नीड। द फर्स्ट पॉइंट, अगर हम सिग्नल्स को बिना मॉड्यूलेट किए ट्रांसमिट करते हैं तो हमें उसके एंटीना लेंथ चाहिए कम से कम λ/4। अब इतनी एंटीना लेंथ तो पॉसिबल नहीं है। The information signal is of low frequency and therefore the wavelength is high. Suppose अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं पर कम फ्रीक्वेंसी की हैं, जब हम उनको ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए लैम्डा कैलकुलेट करके हम λ/4 से एंटीना लेंथ निकाल सकते हैं। अब एंटीना लेंथ अगर बहुत हाई होगी तो उसमें क्या होगा कि पूरा जो सिटी है वो एंटीनास का जंगल बन जाएगा, है ना, तो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो इस इतनी जो कम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं तो उनको यूज करने के लिए उन्हें हमको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे मॉड्यूलेट करना होगा। तो इसका अभी मैं नेक्स्ट पेज में कोई एग्जांपल लूंगी, वहां पे आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी वेवलेंथ के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी हमें बड़ी लेंथ का एंटीना लेना होगा। सेकेंड पॉइंट, if we transmit the information signals directly, the signals from different transmitters get mixed up and the information will be lost. कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई रेडियो स्टेशन लगाते हो तो वहां पे आपको एक ही फ्रीक्वेंसी पे दो दो साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब जो सिग्नल्स डिफरेंट ट्रांसमीटर्स के से आ रहे हैं वो मिक्सअप हो गए हैं और एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है वो आपकी लॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए मॉड्यूलेशन करते हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स देते हैं डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को। तो दिस वाज अ सेकंड पॉइंट कि जो सिग्नल्स की मिक्सिंग अप को रोकने के लिए भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं। देन थर्ड पॉइंट, when a wave has a large frequency the energy associated with it will also be large। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेव्स जो हैं वो ज़्यादा दूर तक जाएंगी। सपोज अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं दे विल नॉट बी एबल टू कवर अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। सो दीज आर चिल्ड्रन द 3 पॉइंट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इस स्लाइड में आओ हम ये समझें कि जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था लेंथ ऑफ एंटीना से रिलेटेड, उसको प्रैक्टिकली कैसे सोचें। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो सिग्नल इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, नॉर्मल ऑडिबल रेंज है हमारा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ट्रांसमिट अ सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज तो उसके लिए जो लैम्डा होगा वो होगा 300 किलोमीटर। ये हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई 300 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना, ये आ गई 75 किलोमीटर। आप सोच के देखो क्या 75 किलोमीटर लंबा एंटीना लगाना पॉसिबल है? नो, इट इज टोटली इम्प्रैक्टिकल। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर हम इतना फ्रीक्वेंसी की वेव पे ट्रांसमिशन करेंगे तो हमें इतना लंबा एंटीना लगाना पड़ेगा जब हमने वेव्स को रिसीव करना है। बट व्हाट इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी? आप कैलकुलेट करके देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 1 मेगाहर्ट्ज रखें और लैम्डा कैलकुलेट करें, उसके बाद λ/4 एंड यू आर गोइंग टू सी कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए जो एंटीना लेंथ है वो सिर्फ 75 मीटर आती है।
तो अब तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, लेंथ ऑफ एंटीना कम होती जाएगी. This shows that for effective transmission of high frequency signals, required antenna length is small and hence such an antenna can be easily constructed. So I guess कि जो ये एग्जाम्पल है उससे आपको उधर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो वी आर स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी समझ आएगी. सबसे पहला पॉइंट है सिग्नल टू बी मॉड्यूलेटेड. ये इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल है. ठीक है. दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, मतलब कैरियर रेडियो वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. जब हमने सिग्नल को इस पे सुपर इम्पोज किया तो सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह का बन गया. जहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा था वहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा था वहाँ पे डिक्रीज हुआ. सो दिस हैज बिकम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. तो एक बार इसको नट शेल्स में पढ़ के देखें. इट चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल according to amplitude of message signal. All information is carried in the amplitude of the carrier. AM systems occupy less bandwidth than FM systems. And last, AM carrier signal has time varying envelope. टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो, ये है टाइम वेरिंग एनवेलप. ठीक. तो अगली स्लाइड पे देखें. फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया, और ये मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल भी इंक्रीज होगी, और जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. सो AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही. अब इससे अगला वाला जो पार्ट है वो हम करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट 3 में. अब इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया है मॉड्यूलेशन से रिलेटेड. ठीक है. तो जितना हम पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करें, और जो नहीं समझ आया उसको जो है वो एक बार दोबारा से रिवाइज करें. ठीक है. सो दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.